آج میں آپ کو ایک ایسے انسان کی کہانی سنانا چاہتا ہوں جس کے گناہ اتنے زیادہ تھے کہ خواب میں ان گناہوں نے ایک خوفناک شکل اختیار کر لی اور وہ شکل اسے جہنم کی آگ کی طرف دھکیل رہی تھی۔ وہ بھاگا، مدد مانگی، چلایا، لیکن کوئی نہ بچا سکا، کوئی نہیں سوائے ایک چھوٹی سی بچی کے، وہ بچی جو مہینوں پہلے اس دنیا سے جا چکی تھی۔ یہ کہانی ہے حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ علیہ کی، ایک ایسا انسان جسے اللہ نے سب سے انوکھے طریقے سے بلایا۔ سنیے، غور سے سنیے، شاید اس کہانی میں آپ کے لیے بھی کوئی پیغام چھپا ہو۔ بصرہ کا ایک گھر، گرم دوپہر، گلیوں میں لوگ آتے جاتے تھے، اور ایک گھر تھا جہاں سے اکثر شور آتا تھا، ہنسی آتی تھی اور شراب کی بو آتی تھی۔ یہ مالک کا گھر تھا، مالک بن دینار رحمہ اللہ علیہ۔ ان کے والد ایک فارسی غلام تھے جو کابل سے آئے تھے، غربت میں پلے بڑھے، لیکن مالک ذہین تھا، محنتی تھا، اور جوانی میں سپاہی بن گیا۔ طاقت آئی، تھوڑا پیسہ آیا، اور ساتھ آئی غفلت۔ خود انہوں نے بعد میں بتایا، میں سپاہی تھا، شراب کا بہت شوقین تھا، دن رات پیتا تھا، بالکل بے فکر زندگی جیتا تھا۔ نماز وہ کیا ہوتی ہے، اللہ بس کبھی کبھی یاد آتا تھا جب کوئی بڑی تکلیف ہوتی، اور پھر وہ بھی بھول جاتا۔ پھر اللہ نے اسے ایک بیٹی عطا کی، اس بیٹی کا نام تھا فاطمہ۔ اور جب فاطمہ گھر میں آئی تو جیسے اس گھر میں ایک عجیب سی روشنی آئی۔ وہ بچی جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی، مالک اسے اور زیادہ چاہنے لگا۔ ہر وقت باپ کے ساتھ رہتی، باپ کی گود میں بیٹھتی، لیکن اس بچی میں ایک عجیب عادت تھی۔ جب بھی مالک شراب کا پیالہ اٹھاتا، فاطمہ دوڑ کر آتی اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے پیالہ چھین کر گرا دیتی۔ مالک ہنستا، ڈانٹا نہیں تھا کبھی، کیونکہ وہ اسے بہت چاہتا تھا۔ پھر ایک دن فاطمہ کو بخار ہوا۔ مالک نے سوچا ٹھیک ہو جائے گی، لیکن ٹھیک نہ ہوئی۔ اور پھر وہ دن آیا جو کسی بھی باپ کی زندگی کا سب سے بھاری دن ہوتا ہے۔ فاطمہ صرف 2 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلی گئی۔ مالک ٹوٹ گیا، بکھر گیا، اور بکھرا ہوا انسان جب غلط راستے پر ہو تو وہ اور زیادہ بھٹک جاتا ہے۔ مالک نے اور زیادہ پینا شروع کر دیا۔ دن گزرتے گئے، راتیں گزرتی گئیں، اور پھر وہ رات آئی جو بظاہر باقی سب راتوں جیسی تھی، لیکن اس رات اللہ نے کچھ اور فیصلہ کر رکھا تھا، اور جو اس رات ہونے والا تھا وہ مالک کی پوری زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ وہ خواب جس نے سب بدل دیا۔ شعبان کی 15ویں رات تھی، جمعے کی رات۔ مالک نے اس رات بھی خوب پیا، عشاء کی نماز نہیں پڑھی، اور بے سدھ ہو کر سو گیا۔ نیند آئی، گہری نیند، اور پھر وہ خواب شروع ہوا۔ قیامت قائم ہو گئی تھی خواب میں، سور پھونکا جا چکا تھا، قبریں کھل رہی تھی، لوگ نکل رہے تھے، مالک بھی ان لوگوں میں تھا، سب حشر کی طرف جا رہے تھے۔ اچانک پیچھے سے ایک آواز آئی، ایک سرسراہٹ۔ مالک نے مڑ کر دیکھا اور اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ ایک بہت بڑا سانپ تھا، کالا اور نیلا، آنکھیں جلتے انگاروں جیسی، منہ کھلا ہوا، اور وہ سیدھا مالک کی طرف آ رہا تھا۔ مالک بھاگا، لیکن جتنی تیز وہ بھاگتا سانپ اتنا ہی قریب آتا جاتا۔ سامنے ایک بزرگ نظر آئے، سفید صاف لباس، خوشبو آ رہی تھی ان سے۔ مالک نے گھبرا کر کہا، بزرگ اللہ کے واسطے مجھے بچاؤ، یہ سانپ مجھے ہلاک کر دے گا۔ بزرگ نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا، بیٹا میں بہت کمزور ہوں، یہ سانپ بہت طاقتور ہے، میری طاقت نہیں، آگے بھاگو، شاید کہیں سے مدد مل جائے۔ مالک آگے بھاگا، بھاگتے بھاگتے ایک چٹان کے کنارے پر پہنچ گیا۔ نیچے جھانکا، جہنم تھی، بھڑکتی آنکھ، ہولناک منظر۔ مالک کا قدم آگے نہ بڑھ سکا، سانپ اور قریب آ رہا تھا۔ اچانک ایک آواز آئی، پیچھے ہٹو، تم جہنم والوں میں سے نہیں ہو۔ مالک پیچھے ہٹا اور پھر سے بھاگنے لگا۔ سانپ پھر پیچھے تھا، پھر سے وہی بزرگ ملے۔ مالک نے کہا، بزرگ میں نے آپ سے مدد مانگی، آپ نہ بچا سکے۔ بزرگ رو پڑے اور بولے، بیٹا میں واقعی کمزور ہوں، لیکن سنو، یہاں قریب ایک پہاڑ ہے، وہاں مسلمانوں کی امانتیں رکھی ہیں، شاید تمہارے لیے بھی کوئی امانت ہو وہاں، جاؤ۔ مالک اس پہاڑ کی طرف دوڑا۔ پہاڑ پر غار تھے، دروازے تھے، اندر سے نور آ رہا تھا۔ ایک آواز آئی، دروازے کھولو، ایک تکلیف زدہ انسان آیا ہے، شاید اس کے لیے کوئی امانت ہو۔ دروازے کھل گئے اور اندر سے بچے نکلے، چاند جیسے چمکتے چہروں والے بچے۔ وہ چلانے لگے، فاطمہ جلدی آؤ، تمہارے ابو کو بچاؤ۔ اور پھر ان بچوں میں سے ایک بچی باہر آئی، روشنی کی کرن کی طرح آئی۔ مالک نے دیکھا اور اس کے پاؤں جم گئے۔ یہ فاطمہ تھی، اس کی اپنی بیٹی، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی معصوم مسکراہٹ۔ فاطمہ نے اپنے دائیں ہاتھ سے سانپ کی طرف اشارہ کیا۔
सांप रख गया और गायब हो गया। फातिमा दौड़कर बाप के पास आई, उसकी गोद में बैठ गई और अपने दाएं हाथ से बाप की दाढ़ी को आहिस्ता से छूकर कुरान की एक आयत पढ़ी। सूरह हदीद आयत 16। क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की याद से झुक जाएं? मालिक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में पूछा, बेटी तुम सब कुरान जानते हो? फातिमा ने मासूम आंखों से कहा, अबू हम आपसे भी ज्यादा जानते हैं। मालिक ने पूछा, वो सांप वो क्या था? फातिमा ने आहिस्ता से कहा, अबू वो आपके गुनाह थे। आपने उन्हें इतना मजबूत कर लिया था कि वो आपको जहन्नम में धकेलने वाले थे। मालिक का सीना भारी हो गया। उसने पूछा, और वो कमजोर बुजुर्ग? फातिमा बोली, अबू वो आपके नेक अमाल थे। आपने उन्हें इतना कमजोर कर दिया था कि वो आपकी मदद भी न कर सके। मालिक ने आवाज भारी करके पूछा, और तुम सब यहां क्या करते हो? फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, ए वो हम वो बच्चे हैं जो बचपन में इस दुनिया से चले गए। हम यहाँ रहते हैं क़यामत तक, और क़यामत के दिन हम अपने माँ बाप के लिए सिफारिश करेंगे। मालिक की आंख खुल गई। वो चीखता हुआ उठा, यार अभी तौबा करता हूँ। हाँ अब वक्त आ गया है। कमरे में अंधेरा था। बाहर फजर की अजान गूंज रही थी। आंखें आंसुओं से भरी थी और दिल था कि टूट रहा था और साथ साथ बन भी रहा था। उसने उठकर शराब के तमाम बर्तन तोड़ दिए, वुदू किया और मस्जिद की तरफ दौड़ गया। मस्जिद में फजर की नमाज थी। इमाम कुरान तिलावत कर रहे थे और जो आयत वो पढ़ रहे थे वही आयत थी जो फातिमा ने ख्वाब में पढ़ी थी। क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया? मालिक वहीं जमीन पर गिर गया और रोता रहा। ये आंसू टूटने के नहीं थे, ये बनने के आंसू थे। लेकिन आगे का सफर क्या आसान था? नहीं। और उसी सफर में असल इम्तिहान शुरू होने वाला था। तौबा करना एक बात है, तौबा पर डटे रहना बिल्कुल और बात है। सुबह हुई तो मालिक के पुराने साथी आ गए। दरवाजे पर दस्तक दी। मालिक क्या हुआ? कल रात नजर नहीं आए। मालिक ने दरवाजा खोला, सिर नीचा रखा और आहिस्ता से कहा, भाई वो वाली बात अब नहीं रही। वहां से क्यों? क्या हुआ? अचानक कोई बीमार है घर में? मालिक ने दरवाजा बंद कर लिया, क्योंकि जिसने रात को वो ख्वाब देखा हो उसके लिए समझाना मुमकिन नहीं था। बाहर निकला तो लोग देखते, कुछ मुस्कुराते, कुछ काना फूसी करते। ये वही मालिक है ना जो कहता था, अब बना हुआ है नेक। ये अल्फाज दिल में उतरते थे। एक दिन बाजार में एक आदमी ने सलाम कहा, मालिक तुम जैसों की तौबा कब तक चलती है? कल फिर वही करोगे? मालिक रखा। एक लम्हा खामोश रहा, फिर प्रसकून आवाज में बोला, भाई मेरा माजी मुझे तुमसे ज्यादा मालूम है, लेकिन अल्लाह की रहमत मेरे गुनाहों से बड़ी है। और चल दिया। अंदर से तकलीफ थी, लेकिन मालिक डटा रहा। उसने एक आलम का दरवाजा खटखटाया। हजरत हुसैन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, बसरा के सबसे बड़े आलम। मालिक उनके पास गया, झिझकता हुआ, शर्मिंदा सा। अंदर से नर्म आवाज आई, आ जाओ। मालिक अंदर गया, सिर झुकाकर बैठ गया। हजरत हुसैन बसरी ने उसे देखा। एक लम्हा खामोश रहे, फिर बोले, तुम्हारी आंखों में दर्द है, बताओ क्या हुआ? मालिक ने सारी रात की कहानी सुनाई, ख्वाब सुनाया, फातिमा की बात सुनाई, आयत सुनाई और रोता रहा। हजरत हुसैन बसरी ने सब सुना, फिर उठकर मालिक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मालिक अल्लाह ने तुम्हें अपनी रहमत से बुलाया है, अब पलट कर मत देखना। लोग कहते रहे, तुम बस अल्लाह की तरफ चलते रहो। मालिक ने उस दिन उनका दामन थाम लिया और उनके मुन्ना से एक ऐसा जुमला सुना जो आज तक जिंदा है, अपने नफ्स से उसी तरह जहाद करो जैसे दुश्मनों से करते हो। ये जुमला मालिक की जिंदगी का उसूल बन गया। आहिस्ता आहिस्ता मालिक बदलता गया, नमाज पढ़ने लगा, कुरान की किताबत करने लगा, इसी से रोजी कमाता। रात को उठकर अल्लाह से बातें करता और दुआ मांगता, या अल्लाह तू ही जानता है जन्नत वाले कौन हैं और जहन्नम वाले कौन। मुझे जन्नत वालों में कर दे, मुझे जहन्नम वालों में न कर। एक रात एक चूर इसके घर में घुस आया। मालिक चुप बैठा देखता रहा। चूर ने पूरा घर छान मारा, कुछ न मिला, क्योंकि मालिक के घर में दुनियावी सामान ही नहीं था। मालिक ने आहिस्ता से कहा, भाई दुनिया का सामान यहाँ है नहीं, आखिरत का कुछ ले जाना हो तो बताओ। चोर ठटक गया। मालिक ने उसे वजू कराया, नमाज पढ़ाई और वो चोर उस रात तौबे करके गया। यही थे वो मालिक जो कभी खुद गुनाहों में डूबे हुए थे, अब वो दूसरों को डूबने से बचा रहे थे। लेकिन अल्लाह को अभी उनसे एक और बहुत बड़ा काम लेना था, एक ऐसा काम जिसका असर सदियों तक रहेगा। हिंदुस्तान का सफर, साल गुजरते गए,
मालिक बिन दीनार एक बहुत बड़े आलम बन चुके थे। वो लोगों को कुरान सिखाते, हदीस बयान करते और रात को बसरा की गलियों में निकलकर पुकारते, ऐ लोगों उठो, अपने रब को याद करो, कामयाबी की तरफ आओ। लेकिन उनके दिल में एक बेचैनी थी, एक ख्वाहिश थी कि जो नूर उन्हें मिला है वो और आगे पहुंचाएं। और फिर एक खबर आई हिंदुस्तान की सरजमीन के बारे में कि वहां इस्लाम का नूर अभी नहीं पहुंचा, वहां के लोग अल्लाह के नाम से नावाकिफ हैं। मालिक ने यह सुना और दिल में कहा, मैंने गुनाहों में इतने साल बर्बाद किए, अब जो वक्त बाकी है वो अल्लाह की राह में लगाऊं। उन्होंने अपने साथियों को बुलाया, 12 से ज्यादा लोग तैयार हुए। सबने मिलकर समंदर का रख किया। ये 624 ईस्वी की बात है। समंदर पर हवाओं की थपेड़े थे, कश्ती हचकुले खा रही थी, लेकिन मालिक के दिल में ईमान का सुकून था। जब वो काफिला किराला की सरजमीन पर उतरा तो ये पहला मौका था जब हिंदुस्तान की मिट्टी पर इस्लाम का कदम पड़ा। वहां के लोगों ने उन ताजरों में कुछ मुख्तलिफ देखा। सच्चाई थी उनके लेन देन में, इंसाफ था उनके मामलात में, मेहरबानी थी उनके रवैये में। एक मकामी सरदार ने पूछा, तुम लोग इतने ईमानदार क्यों हो? हमने ऐसे ताजर कम देखे हैं। मालिक ने आस्था से मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारे दीन का हुक्म है। हमारा दीन कहता है कि झूठ और धोखा गुनाह है। सरदार ने कहा, इस दीन के बारे में और बताओ मुझे। और वहां से शुरू हुआ वो सिलसिला जो आज भी हिंदुस्तान में जारी है। लेकिन सबसे बड़ा काम अभी आना बाकी था, वो काम जो पत्थरों में भी रोशनी भर दे। हजरत मालिक बिन दीनार ने किराला में रहने का फैसला कर लिया। वो यहीं के हो गए। उन्होंने अपने हाथों से मसाजिद तामीर की, एक नहीं, दो नहीं, 10 से ज्यादा मसाजिद। कोडंगलूर में, कोलम में, मंगलोर में, कासरगोड में, जहां जहां वो गए इस्लाम का नूर छोड़ गए। और वहां के लोगों ने इस्लाम कबूल किया, ना किसी जोर से, ना किसी दबाव से, बस एक इंसान की जिंदगी देखकर। इस इंसान की जिंदगी जो खुद कभी गुनाहों में डूबा हुआ था। एक बार किसी ने पूछा, आप पहले इतने गुनाह करते थे, क्या आपको अल्लाह की कबूलियत का यकीन है? मालिक ने प्रस्कून आंखों से देखा और बोले, अल्लाह की रहमत मेरे गुनाहों से बड़ी है। बस यही था उनका ईमान, सादा, पुख्ता, मजबूत। वो रात को उठकर घंटों अल्लाह को याद करते, उलमाओं से इल्म सीखते रहे। कभी हजरत हुस्न बसरी की तालीमात याद करते, कभी कुरान की तलावत करते और लोगों को वही सिखाते जो खुद सीखा था कि जिंदगी मुख्तसर है, गुनाह इंसान को अंदर सिखाते हैं और अल्लाह की रहमत हमेशा दरवाजा खुला रखती है। 7 ईस्वी के करीब हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह कासरगोड किराला में इस दुनिया से रुखसत हो गए। थालंगारा की मिट्टी ने उन्हें अपने अंदर समा लिया। आज भी वहां उनका मजार है, आज भी वहां लोग आते हैं, आज भी उनकी बनाई हुई मसाजिद में अजानें गूंजती हैं और आज भी वो आयत गूंजती है जो एक छोटी सी बच्ची ने एक गुनाहगार बाप को ख्वाब में सुनाई थी। क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया? गुनाह कितने भी हों, अल्लाह की रहमत उससे बड़ी है। नफ्स से जिहाद मुश्किल है, लेकिन यही सबसे बड़ा जिहाद है और एक सच्चा कदम पूरी जिंदगी बदल सकता है। मालिक बिन दीनार ने यह साबित किया।